Known for its lush green beauty and diversity, the northeast region of Bharat has a significant cultural heritage and festivals that are a real treat to the eyes and mind. The colorful traditional attires, folk music and dance, and even the culinary experience attached to these festivals make them unique yet connected to the roots. From time immemorial, the people of the Northeast are largely dependent on agriculture. So the prime festivals of the region also celebrate agriculture and harvest. यहाँ का जो हमारा जो संस्कृति है वो संस्कृति मातृ निर्भर संस्कृति है। हम भूमि को भूमि नहीं समझते हैं, माता समझते हैं। भूमि से जो उपजाऊ आता है वो हमारा भोजन का सामग्री बन के हमको बचा के बढ़ा के रखता है। खेती में खेती करते हैं और खाते हैं ऐसा नहीं है, हम उनको पूजा भी करते हैं। Chaitra month has special significance in Indian culture. It is believed that Lord Brahma, the creator of the universe, started the creation of the universe from the Shukla Pratipada of Chaitra month. At the same time, the beginning of Satyug is also considered to be from the month of Chaitra. On Chaitra Shukla Pratipada is celebrated as New Year in major region in our country. Eastern Bharat along with Jammu, Himachal, Punjab, Haryana, Uttarakhand and Tamil Nadu has celebrated New Year in the month of Bohag, and all the celebrations for welcoming New Year has started in the last 2 days of Chaitra. Last day of Chaitra is called as Domahi. On that day, maximum major communities of this region celebrate the New Year in different ways. One of the biggest festivals of the Assam region is Bihu. Assam celebrates 3 major cultural festivals a year, mostly related to harvest, marking a particular period on the agricultural calendar as Bohag Bihu or Rongali Bihu, Kati Bihu or Kongali Bihu, and Magh Bihu or Bhogali Bihu. The biggest and most colorful of the 3 is Bohag Bihu, which is celebrated at the seeding time in spring with plenty of singing and dancing, and also marks the Assamese New Year. The 7-day celebration of the Bohag Bihu starts with Goru Bihu, a day dedicated to cows, considered to be the most loyal and helpful friends of the farmers. The second day, which is called Manu or Human Bihu. On this day, the deities are worshipped and the younger generations of the family take blessings from the elders, visit friends and relatives, again accompanied with plenty of singing and dancing. Oya kolong membera oya nga oko lop egda ga ane no
Oya silo sinanu pola ampo sino indu pola Oya liai soman pola All the indigenous communities celebrate Bihu with their own rituals and belief. Boro community, one of the largest ethnic community, has celebrated the new year as Baishagu with an auspicious manner. बोडो समुदाय भी प्रत्येक बैसाख महीने को अर्थात बोहाग या बैशागु को अपने नववर्ष के रूप में मनाते हैं। बोरो समुदाय के लोग प्रत्येक नववर्ष के समय जो कृषि उत्पादन से पहले का जो उत्सव है रोंगजाली बैशागु, इस समय 1 तारीख को हम लोग सभी बड़ों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और बिहुआन या हम लोग असम में बिहुआन कहते हैं और हम लोग कोई भी आरोन्ना या हम लोग बैसा ऐसे गामोसा हम लोग ऐसे उपहार या गिफ्ट देते हैं। हम लोग बाथू का जो प्रकृति का पूजा होता है, जो सिदू जो वृक्ष है जो हम कैक्टस कहते हैं, उसको पूजा करते हैं। पूरा वर्ष अच्छे से मतलब संपन्न हो, घर में खुशहाली हो, घर के जो पेड़ पौधे वृक्ष धान भंडार गृह हैं, घर में लक्ष्मी का आगमन हो, इस प्रकार से जो बोडो समुदाय के लोग हैं बाथो पूजा करते हैं। और उसमें जो परंपरागत वाद्य हैं, उसको खाम सिफुंग, उसको बांसुरी सिफुंग बोलते हैं, सेरजा जोथा और आरोज अर्थात प्रार्थना के साथ हम लोग नववर्ष के स्वागत करते हैं।
साथ साथ प्रत्येक घर में हम लोग बैशागु नृत्य करते हैं। जो बैशागु नृत्य जिसे असमिया में हुसोरी या बिहू नृत्य कहते हैं, उसी प्रकार से बोडो समुदाय बैशागु नृत्य के साथ साथ नव वर्ष का स्वागत करते हैं। का भी असम में जितना भी ट्राइब है उसके अंदर हाजोंग भी हम लोग एक जनजाति है। तो हर एक जनजाति की तरह हाजोंग लोग भी अपने एक परंपरागत एक पद्धति से हम लोग बिहू, जो हम लोग का एक भाषा में उसको बिस्वा बोलते हैं, वो उसका पालन करते हैं। और सभी के जैसे हम लोग के यहाँ पर भी जो खेती वगैरह करके वो घर में लाके और उसके जो आनंद के उत्सव में वो लोग हम लोग बिस्वा मनाते हैं। जो है हम लोग का 7 बिहू, पहली जो बिहू है वो गोरु बिहू बोलते हैं। और गोरु बिहू में हम लोग अपनी ही एक परंपरागत पद्धति से उसको मनाते हैं। जैसे गोरु को हम लोग मतलब पुखरी में या फिर नदी के किनारे में हम ले जाके उनको नहलाते हैं। उसको हम लोग जो दाना वगैरह उनको खिलाते हैं। उसके साथ ही हम लोग और एक हम लोग का परंपरागत एक पद्धति है, वो है हम लोग करवा के साथ कुछ भी एक करवा के साथ हम लोग जो बड़ा चावल की एक जो उसका मतलब गेहूं से हम वो करवा पे खाते हैं। जनजाति के लोग जहाँ भी रहते हैं वो एक खुले मैदान में वो लोग अपना जो परंपरागत नृत्य है, गीत है, वो गाते हैं। जैसे हम लोग के हाजोंग में भी है, जैसे उसको लेवाताना नृत्य बोलते हैं। वह एक गीत है जो युवा और युवती के जो प्रेम के जो भाव है एक दूसरे के वो निवेदन करते हैं। और उसी में लेवाताना नृत्य हम हाजोंग लोग भी मनाते हैं। उत्सव है। बैशाख महीना ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम लोग का आसाम में ही है, हम लोग का आसाम के हर एक मतलब जनजाति के लिए ये नहीं है, ये प्रकृति सबके सभी के लिए है। ये प्रकृति सभी के जितना भी हम लोग के भारतवर्ष या हो सभी में जनजाति के या फिर हर एक आदमी के लिए बसंत उत्सव मतलब मनाते हैं, क्योंकि ये आनंद का उत्सव होता है। बैशाख महीना में भारतवर्ष में भी अलग अलग स्टेटों में, पंजाब में होते हैं, बिहार में होते हैं, हरियाणा में होते हैं, अपने अपने तरीक़ा से वो लोग मनाते हैं। वैसे ही हम लोग असम में भी हर एक जितना भी जनजाति है हम अपने अपनी तरह से वो मनाते हैं।
দ্বিতীয় বন্দনা ব্রজ নারী মদনে মোর লাগল ভারী বলে দ্বিতীয় বন্দনা ব্রজ নারী মদনে মোর লাগল ভারী। हम जिसे भारतीय परंपरा मानते हैं, भारतीय परंपरा दुनिया का सबसे पुराना परंपरा है। हमारा जो धर्म है उसको सनातन धर्म बोला जाता है, जिसका कभी शुरुआत नहीं हुआ था, अंत भी नहीं होता है, ये चलता रहता है। ये सारे लोग एक साथ हुए क्योंकि एक साथ में जुड़ गए, क्योंकि इनका संस्कृति और चिंता और मनन जो था वो सब करीब करीब एक ही था। Many different communities celebrating the pre-harvesting festival to herald the new year signifies the core of Bharat. They are all unified in one composite culture, although they may differ in their manner of rejoicing. Together, they constitute the soul of Bharat.